फ्रेंड्स, कौन कहता है कि एमकॉम में मैथ्स नहीं होता? हर साल एमकॉम में मैथ्स होता ही होता है। और जो स्टूडेंट्स इग्नू से एमकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनको छूट मिल जाती है, देयर आर नो मैथ्स। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर वहां पे मैथ्स है। एमसीओ 03, 05, 07 ये तीनों ही सब्जेक्ट में मैथ्स है। एंड ये मैथमेटिक्स इतना मार्क फीचिंग है। आप एक थ्योरी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखोगे एंड नियरली अबाउट यू हैव टू राइट 1500 to 2000 वर्ड्स, जो नियरली अबाउट आपको 45 मिनट से लेके 1 आवर भी लग सकता है। लेकिन इंस्टीड ऑफ दैट, अगर आप मैथ्स को अगर आप करते हो, वो मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, तो वो हार्डली 5 से 7 मिनट में आपका हो जाएगा। तो इतना मार्क फीचिंग है। आपको करना क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना है। ये मैथ्स हम लोग पहले कर चुके हैं इन द स्कूल लेवल, इन द प्रीवियस कॉलेज लेवल वी हैव डन दिस। एक बार रिवीजन की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आई डोंट थिंक एमकॉम के कोई लाइव क्लासेस करवाते हैं मैथमेटिक्स पे। सो यहां पे मेरे चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का A to Z एमकॉम के, इग्नू एमकॉम के जितने भी मैथ्स के चैप्टर है, सो वी विल ट्राई टू स्टडी दैट। एकदम इजी रास्ता बताऊंगा आपको, सो दैट बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको करना क्या है? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो click that notification button so that whenever I upload a new video, you get the notification. So distribution can be of two types, and one is discrete distribution, the other is continuous variable distribution. In discrete, in simple words we can say discrete as exact, and continuous, it can vary. It may vary. Okay, the variables can vary. Let's take one example to understand the difference between these two types of distribution. Fine. So let's take the example of this. Say marks and number of students. Okay. This is about discrete. Suppose let's start with 30, then 50, 70, 90 and 100. So how many students scored 30 marks? Say 5 students. 50 marks, say 10 students. 70 marks, say 8 students. 90 marks, say 6 students. And 100 marks, say 1 student. So this is one example of discrete, because we know the value of the variable. Okay, exactly 5 number of students have scored 30 marks. 10 number of students, exactly 10 number of students have scored 50 marks, and exactly 8 students have scored 70, and exactly only 1 student has scored 100. So this is discrete distribution. And let's take one example of continuous distribution. In continuous, say the marks are given like this, say 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. And let's see number of students. Okay, so let's see, let's say this is 2, this is 5, this is 10, this is 12 and this is 8. Okay, so let's try to understand continuous series. Now these marks are these marks are nothing but range, like from 0 to 20 marks. 0 to 20, how many numbers are there between 0 to 20? There are 20 numbers. So 2 students have scored between 0 to 20. Like that, from 20 to 40, 5 students have scored. Like among the 5 students, it can be बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 25 लाइन, 21, 23, 24, 25। तो कोई भी मार्क्स जो 20 से 40 के बीच में हो सकता है।
लाइक दैट। 40 से 60 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, अगेन 20 नंबर्स हैं। सो 20 नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है, एंड द 10 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इन बिटवीन दैट। ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज द डिफरेंस। फाइन, यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम है, वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू, एंड यहां पे वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है। These are probable distribution, and that is why it is called continuous frequency distribution. And one thing more, number of students, number of families, number of people, number of accidents, number of cars. तो जहां पे number होगा, that means that is frequency. This is called frequency. F. This is frequency. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स कर लेते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड ये जो डिफरेंस है यहाँ पे मार्क्स का, एंड ये जो डिफरेंस है, सपोज दिस वन, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक पहला जो नंबर होता है रेंज का, एंड दिस इज अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, राइट। एंड यहां पे अगर हम लोग रेंज की बात करें तो द रेंज इज 0 to 100। यहां पे रेंज, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सो द रेंज इज 100। 100 मींस द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट लोअर लिमिट एंड द हाईएस्ट अपर लिमिट, सो दैट इज कॉल्ड रेंज। आई होप कि आप लोगों ने दोनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। And let's see continuous frequency distribution को again we can divide it into two types. There are two methods to write continuous frequency distribution. What are those? One is exclusive method and the other is inclusive method. ठीक है? So let's see with an example कि इसको कैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। Exclusive. Suppose यहाँ पे क्लास दी हुई है आपको से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. And frequency is also given, say 2, 3, 5, 4, 1. Okay? Now when you look at this carefully, you will see that the lower limit, upper limit, then again ये दोनों क्लास को जब हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ओके, सी यहां की जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट एकदम सेम है, इट इज सेम, लाइक दैट। सेकेंड क्लास, द अपर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास इज सेम, लाइक दैट, ये भी सेम है, so like that. So what I want to say that in exclusive method, the upper limit of the preceding class or the first class will be the upper limit will be equal to the lower limit of the next class. So that is called exclusive method of continuous frequency distribution. And when we talk about inclusive method, let's see what is the difference. Say class, suppose this is 0 to 9, this is 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, like that, 40 to 49. And we can also write down the frequency of this. Say this is 5, 10, 15, 20 and 5. So as you can see here that the upper limit of the first class is not equal to the lower limit of the next class. Like that, as you can see here, यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो है 9, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 9 नहीं है, वो 10 है, लाइक दैट। सेकेंड क्लास की अपर लिमिट 19 है बट थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 20 है, सो दे आर नॉट इक्वल. So this is called inclusive. Guys, let's take one example to understand how to draw frequency distribution table. I have written a question here, and all these are the marks of, I suppose, 30 students, and you have to draw a frequency table.
So there are 30 students and we know the marks of all the 30 students, मतलब हमें सारे स्टूडेंट्स की मार्क्स मालूम है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो हियर आपको यहाँ पे करना क्या है, यू हैव टू ड्रॉ 3 कॉलम्स। वन कॉलम इज मार्क्स, द अदर इज tally marks, and the third column is frequency. Okay, so let's see. Okay, यहाँ पे केयरफुली आपको नंबर को स्टडी करना है कि कौन कौन से नंबर दिया हुआ, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे जैसे इस डिस्ट्रीब्यूशन में 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 5 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो मार्क्स में आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। नाउ यहाँ पे टैली मार्क्स में आपको क्या करना है, आपने जूनियर क्लासेस में भी ये सब चीज की हुई है, तो इसको एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, टैली मार्क्स 0, देखते हैं 0 कितने बच्चों ने स्कोर किया है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, so there are 5 0, that means 5 students, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 5th लाइन है वो 5th लाइन विल बी इंक्लाइंड, स्लोपिंग, राइट। लेट्स सी 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6 students have scored, so that means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this is tally marks of 1. Like that. 2, let's see how many students have scored. 1, 2, 3, 4, that's all. There are 4 students, so 1, 2, 3, 4, right, like that. 3, 1, 2, 3, 4, again 4, so 1, 2, 3, 4. Okay, इसमें प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स उसको जब पिक करते हैं नंबर्स को, वो आइदर आप इसको मार्क कर दें या फिर इसको सीरियल ऑर्डर में एक बार लिख दें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो दैट विल बी बेटर, सो दैट कोई भी नंबर आप भूल नहीं सकते। ओके, 4 देखते हैं। सो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो ये 4 की टैली मार्क्स आ गई। लाइक दैट 5 फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर रो में 1, 2, 3 एंड 4, so this is 1, 2, 3, 4. Now count the number of lines and write in the frequency table. Here it is 5 and here 5, 6, here 4, here also 4, and here 7, and here again 4. Now make the total of this, right? So 10, that is 10, 15, 19, 26, and you get 30. So make sure that the total number of students should match with this frequency. आगे चलते हैं and let's see how many types of frequencies are there. Basically, in MCOM exams, basically we have 3 types of frequencies. One is cumulative, less than cumulative, more than cumulative, and the third one, relative cumulative frequency. So let's see one by one. I have written one question here, right? So let's see cumulative frequency. Cumulative frequency, as the name implies, friends, it's very easy. In cumulative frequency, what you have to do is just you have to go on adding the frequencies, right? So like first frequency is 2, so that is you must write 2. Then again the next, to find the next cumulative frequency, this is less than frequency, less than cumulative frequency. Okay, so the first frequency is 2, the second 2 plus 3 will give you 5, 5 plus 5 that will give you 10. Again when you add 10 with 6 you get 16, and when you add this you get 20. So like this,
So this is less than frequency table. And when we talk about more than cumulative frequency, this is more than. अगर आपको एग्जाम में आता है कि मोर देन कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को टोटल करना है. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे टोटल करेंगे तो यू गेट 20, बिकॉज ये 20 और यहाँ की जो हम लोग जो लेस देन फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसका लास्ट नंबर और ये टोटल ये हमेशा मैच करता है, तो इस चीज का ध्यान रखें. ओके, मोर देन में आपको करना क्या है, 20 से आपको रिड्यूस करते जाना. आपने यहाँ पे ऐड करके लाइक व्हेन यू कंस्ट्रक्ट लेस देन आपने ऐड किया था, मोर देन में आपको सबट्रैक्ट करना है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर. लाइक 20, the first is 20 and 20 minus 2 you get 18, then 18 minus 3 you get 15, then 15 minus 5 you get 10, and 10 minus 6 you get 4. So like this. So this is more than cumulative frequency table. Fine. Okay friends, अब देखते हैं एक नया टाइप का फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लेस देन क्यूमुलेटिव, मोर देन क्यूमुलेटिव हम लोगों ने मोर और लेस किया हुआ है, बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर. नाउ व्हाट इज दैट? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है. टोटल फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है. दैट मीन्स 2/20. सो you get 2 divided by 20, like that you get that first relative frequency. Like that 3/20 will give you the second. Like that 5/20, 5/20, 6/20 and last वाली है 4/20. तो इसकी जो वैल्यूज आती है जनरली डेसिमल्स में आएगी. जैसे हम लोग 2/20 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट यू गेट 0.1. ठीक है, लाइक दैट 3 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं तो ये सारे डेसिमल्स में आएंगे. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जनरली डेसिमल. कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि रिलेटिव को रिलेटिव परसेंटेज में चेंज करो. तो व्हाट यू हैव टू डू अगेन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट यू गेट परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो फ्रेंड्स, ये तो था आज वीडियो में जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का शुरुआत किया है एंड वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे. सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस and see you in the next video with a new topic. Goodbye, take care.